Hello student, welcome you back in this physics video. In today's video we are going to learn about projectile motion at an angle. So when this projectile is projected at an angle with the ground, so we want to find out equation of its trajectory, time of maximum height, time of flight, time of that maximum height of a projectile and horizontal range. Okay, so let us to start. So for this purpose student, let us suppose that this is the reference axis. So here it is x-axis, while this side it is going to be our y-axis, and there it is that reference point. This is O. Okay. So from here we have projected this body upward. So this body it goes under the effect of gravity, attains maximum height, and from the maximum height it then drops down, and again it falls on this ground. Okay, so we are supposing that here it falls at this point B on the ground. Okay, and at point, let us to suppose this is the point A where this projectile have maximum height. So this is that maximum height h max, which I am going to denote. Okay, so suppose that initially this body it was projected at an angle with some initial velocity. So this is at an angle theta with this velocity u. It is projected upward in the reference axis. So as we are looking student, when we are projected this body upward, so that time it is doing two motion. So one motion that will be along the horizontal, ठीक है, from here you will find O से हमने उसको एयर में थ्रो किया where it is going to fall at B, so it has covered horizontal distance, and second thing that it has gone in the vertical as well. So thus there is the two combined motion which is done by this body which is projected in air. So to study its two motion, we are going to resolve this single that into its component. So it's one component that will make it to move along horizontal. So this is going to be our that of u cos of theta. The component it is u cos theta, while this vertical motion we are going to study it with the help of this component which is of u sin theta. So these are the two component. Now let us suppose that here at point P, this is the point P, and the body reaches at this point P. So let me to suppose that this point P, it is at a distance x, at a distance x from origin. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से ये x डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास है, एंड सिमिलरली इन y एक्सिस, in vertical how much it has gone up. So this is y. okay, तो पॉइंट पी हमने कंसीडर किया जहाँ पे स्टूडेंट ये क्या करती है, एक टाइम के बाद बॉडी जो है वो पहुँचती है, तो उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया था पी तक पहुँचने के लिए, दैट वाज एक्स. okay, that was x over here, and how much is that vertical height it has attained, so it was y. okay, so therefore as we will see that this horizontal motion it is due to this u cos of theta, and the principle of physical independence says that this horizontal component will be uniform of the velocity. okay, so how much is the time taken to reach from O to this distance which it has covered to go for that P? So we will find that student it is horizontal motion. So this horizontal motion, first step, so it is going to cover over there that x distance. तो P का जो x जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो कितना था स्टूडेंट, हमारे पास x था. ठीक है, सो इट इज़ x डिस्टेंस अपॉन में दैट स्पीड विद विच इट कवर्स दिस डिस्टेंस, इट इज़ गोइंग टू बी u cos ऑफ थीटा. सो दिस इज़ दैट टाइम, ये वो टाइम लगा उस P तक पहुंचने के लिए
उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो वो हमारे पास टी टाइम में एक्स वाई यू कॉस थीटा बना. नाउ द नेक्स्ट सेकंड वन इज देयर, इट इज़ वर्टिकल मोशन. सो इन द सेम टाइम इट आल्सो परफॉर्म्स दैट वर्टिकल मोशन. तो ये साथ ही साथ उस टाइम क्या करता है, वाई डिस्प्लेसमेंट भी करता है. ओके, सो यूजिंग दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दैट इट इज़ एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. नाउ स्टूडेंट जस्ट टू चेक दैट वन, यहाँ पर कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है पी तक पहुँचने के लिए. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने वाई के इक्वल की, कॉमा हाउ मच इज़ दैट इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस. तो ये वर्टिकल एक्सिस में है इसलिए मैं वाई साथ में डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, इट इज़ एस वाई यू वाई ए वाई. ठीक है, तो ये वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही है. तो इसलिए वर्टिकल एक्सिस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है. तो यहाँ पर स्टूडेंट वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी, दिस इज़ यू साइन थीटा. जबकि हमारे पास उस हॉरिजॉन्टल फायर्ड जो प्रोजेक्टाइल था उसमें उसके पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती थी. ठीक है, एंड दैट एक्सेलरेशन स्टूडेंट हेयर इट विल बी माइनस ऑफ जी. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्टिकल मोशन है अपवर्ड वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसलिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो मोशन है वो माइनस होगा. सो दैट्स वी कैन हैव दिस इज दैन वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा t plus of 1 by 2 minus of g, and there it is t square. Or either we can do one thing, that how much time it has taken to cover this vertical displacement, so that was equal to the time as to cover this horizontal distance. Okay, so therefore we will have then y is equal to u sin theta, and that t value it is x upon my u cos of theta, and thereafter minus of 1 by 2 g, it is t का square, so which is of x का square upon my u square cos square theta. Okay, so this we got over here. So the things is going to cancel, sin by cos it is tan theta minus of 1 by 2 g u square cos square theta, and it is x square. So this is that vertical, that distance it has moved to reach at point P. So let us to take over here this tan theta, it is P, while this 1 by 2 g u square cos square theta it is written as q, and x square as it is over here. Okay, so we are finding this is that quadratic equation, and which is in x. Okay, so therefore we are having that y is a quadratic function of x. So this is the equation of a parabola. Okay, so this is that equation of parabola, equation of a parabola. Okay, so in first step that we have proved this one, that equation of trajectory. Okay, that the path which is covered by the projectile under the effect of gravity, it is going to be curved path. Now let us to find over here time to reach this maximum height. Now here that we are going to find out this B point, time of maximum height. तो O से A, क्योंकि हमारे पास A जो है वो पॉइंट है जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से. ठीक है, तो वो पॉइंट A के ऊपर आता है, और उससे लेफ़्ट और उससे राइट जो हाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास O से A तक जाने के लिए ये कितना टाइम लेता है. सो दिस टाइम इट इज़ सेड टू बी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. सो वी कैन से दैट time to go from reference point O to A. Okay, this time is said to be time of maximum flight. Now we will observe over here student, ये जो maximum height है, ठीक है, तो इसमें कौन सा मोशन हुआ था. हाइट अटेन करने के लिए कौन सा मोशन हुआ, जो हाइट अटेंड हुई वो वर्टिकल मोशन हुआ. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज़ that
time relation over here. If you will observe student here, जब बॉडी जो है ओ से ए के ऊपर जाती है तो ए पर उसने क्या किया, मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। इसका मतलब वो उसके बाद वो वर्टिकल मोशन अपवर्ड में नहीं करने वाले, उसके बाद जो मोशन होगा उसका वो क्या होगा, डाउनवर्ड में होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है इन वर्टिकल दैट विल बिकम जीरो एट पॉइंट ए, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एंड इनिशियली विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज गोइंग इन वर्टिकल, तो वर्टिकल में स्टूडेंट ये जा रहे थे यू साइन थीटा से। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस दैट टाइम विच इज़ नीडेड टू रिच दैट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और एक्सेलरेशन स्टूडेंट इसमें वो हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन है, इसलिए माइनस ऑफ जी यूज़ होना है। ठीक है, सो देयरफॉर दैट फाइनल वेलोसिटी इज गिवन टू अस, इनिशियल भी है, ए भी है, टी भी है, तो इसलिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने यूज़ करनी है। सो दिस इक्वेशन इट सेज दैट v equals to u plus of at। ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट इट इज़ इन वर्टिकल मोशन, तो इसलिए वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि हाइट अटेन वर्टिकल मोशन में ही की जा सकती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो स्टूडेंट जीरो हो गया, तो जिससे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो u साइन थीटा है हमारे पास, और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ g बन गया, क्योंकि वर्टिकली जब ये मूव करता है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, एंड दिस टाइम विल बी टाइम ऑफ दैट टू रीच एट maximum height. So thus we got over here that this time to reach at maximum height it will be u sin theta y g. This is the time of that to reach at maximum height. Okay, now let us see over here student that for what time this projectile will remain in air. ठीक है, O से जब ये B के ऊपर फॉल करता है, ठीक है, तो O से B तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया। सो दिस इज सेड टू बी द C point I am going to calculate over here. This is said to be as time of flight. ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या हो गया, टाइम टू गो फ्रॉम O टू B। ठीक है, तो O से B तक जाने के लिए कितना टाइम लिया गया, बट इट इज़ हाउ मच टाइम इट रिमेन्ड इन एयर। फ्लाइट की बात हो रही है ना, हवा में कितनी देर था, ऐसा नहीं कि अलॉन्ग द ग्राउंड में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हवा में ये कितनी देर था। ठीक है, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। इवन दो O से B डायरेक्ट भी जाते तब भी वही सेम टाइम हमारे पास आने वाला है स्टूडेंट। तो इसमें चेकआउट करना कि हमारे पास जो हाउ मच इज दिस डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, इस पूरे जो इसने O से B तक जब ये एयर में था तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बनी इसकी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सो वी विल ऑब्जर्व कि जैसे ये O से A के पास आता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है वर्टिकल में, बट उसके बाद ये दोबारा से क्या हो जाती है, अगेन B के ऊपर जीरो। तो इसलिए इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या हो रही है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये कौन सी वेलोसिटी से इसको हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था, तो इनिशियली हमने इसको जो u साइन थीटा था स्टूडेंट उससे अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, एंड द टाइम विच इट विल टेक टू रीच फ्रॉम O टू B, तो O से B पहुंचने के लिए उसने क्या टाइम लिया, सो दिस टाइम इट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया T, कैपिटल T। ओके, एंड हाउ मच इज दिस एक्सेलरेशन विट इट हैज़ गॉट। ठीक है, तो इसमें जितना भी हमारे पास स्टूडेंट ये O से B तक मूव करती है वो सारा का सारा मोशन इसका अंडर ग्रेविटी के आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ G। ठीक है, माइनस ऑफ G, तो वर्टिकल में जो जितना भी इसका एक्सेलरेशन था वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो दिस इज माइनस ऑफ G। देयरफॉर ओवर हेयर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन
of uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion. So this says over there that डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर. तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो स्टूडेंट, और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी इनिशियली वो यू साइन थीटा है, और जो टाइम है टी, एंड इट इज़ माइनस ऑफ 1/2 क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी, और दिस इज़ टी का स्क्वायर. ओके, एंड we got over here that it is bring this term to the left, it will become negative. नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, जिससे u sin थीटा t इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर होगा. तो t और t की एक पावर कैंसिल होगी, तो जिससे हमारे पास यहाँ पर t टाइम ऑफ लाइट हमने फाइंड आउट करना है. तो 2 इस तरफ आएगा, g डिवाइड में चला जाएगा. सो इट इज़ 2u sin थीटा बाई that g. This is time of light. So this is that time which is taken by this projectile to go from O to B. So it is time of light 2u sin theta. So if we will say that student, ये जो हमारे पास यहाँ पर टाइम था वो क्या था, O से A तक जाने के लिए उसने क्या लिया, u sin थीटा बाई जी. ठीक है, और ए से बी तक आने के लिए उतना उसने क्या किया, उतना ही टाइम लिया. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इट इज़ टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू कम डाउन. ठीक है, तो ओ से ए तक जाने के लिए और ए से बी तक जाने के लिए. ठीक है, तो ये क्या बना, डबल ऑफ टी एम. ठीक है, और टी एम की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा बाई जी. सो यू विल गेट दिस सेम आंसर. ठीक है, तो ये असेंट का टाइम है, ये डिसेंट का टाइम है. असेंट का मतलब हो गया जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है, और डिसेंट का मतलब है जब ये डाउनवर्ड मूव करता है. तो जितना टाइम ये अपवर्ड में लेता है उतना ही टाइम ये डाउनवर्ड में लेता है. फॉर एग्जांपल, एक बॉल को आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, 4 सेकेंड के बाद वो आपके पास आ जाती है. इसका मतलब है 2 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, 2 सेकेंड में वो वापस कम बैक करती है. ठीक है, तो इसलिए सेम टाइम टू गो अप विद द सेम इट केम डाउन. सो दस वी हैव टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ द नेक्स्ट इज दैट हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज़ गिवन बाय कैपिटल आर. सो हॉरिजॉन्टल रेंज मीन टू से दैट स्टूडेंट ओ से बी अलोंग द ग्राउंड इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस अलोंग ग्राउंड फ्रॉम O to B. ओके, सो वी आर नोन ओवर हेयर कि जो अलोंग द ग्राउंड है वो किस से मूव कर रहा है, यू कॉस थीटा से मूव कर रहा है. ठीक है, तो यू कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. तो इसलिए ऑलरेडी फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट इट सेड दैट कि यू कॉस थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म रहता है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट रेंज क्या हो जाएगी, दैट विल बी दिस स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड इनटू टाइम से आएगा. नाउ ओवर देयर with what speed it is going to cover this distance. So this speed remains uniform, it is u cos theta into at what time it takes to go from O to B. तो O से B तक पहुंचने के लिए ये क्या लेता था स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर वो हवा में रहता था. ठीक है, वही टाइम ये O से B तक लेगा. ठीक है, यही था ना कि अगर वो 4 सेकेंड हवा में रहता है, इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ पर पहुँचेगा, बी के ऊपर. तो इसलिए टाइम ऑफ लाइट और ओ से बी तक जाने का टाइम क्या हुआ, टी, कैपिटल टी, मतलब टाइम ऑफ लाइट से ही डिनोट होगा. सो दिस इज यू कॉस थीटा इनटू जो टाइम ऑफ लाइट है स्टूडेंट, दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अस, इट इज़ डबल ऑफ दिस u sin theta by g. Okay, so we can take that one, ये 2u, it is u, so it is 2u square cos theta sin theta by g. But as we are known, जो sin 2 थीटा होता है स्टूडेंट उसका फार्मूला होता है 2 sin theta cos theta. ठीक है, so see that one.
2 इज अवेलेबल हेयर, cos थीटा इज दिस वन, sin थीटा इज दिस वन, दोनों के एंगल सेम है, एंगल सेम है, ठीक है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। सो इट इज़ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, दिस इज दैट range. Okay, this is the range over here. Now if we will say that when this range will be maximum, ठीक है, तो रेंज आपने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इनिशियली जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया था और जो जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था वो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ हेयर दैट एज रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम रेंज। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, सो स्टूडेंट वी आर नोन रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 बनेगी, यानी कि साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। तो साइन यहाँ पे थीटा 45 डिग्री रखोगे तो 45 का डबल क्या होगा, 90, साइन 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आपके पास थीटा यानी कि ग्राउंड के साथ आप उसको क्या करते हो, यहाँ पर ये जो एंगल है अगर आप उसको 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो स्टूडेंट, तो उस वक्त वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये वो मेथड है जो हम शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रोअर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द फार्मूला विल बिकम देन, तो मैक्सिमम रेंज के लिए फार्मूला हमारे पास होगा यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। सो दिस इज़ द फार्मूला विच वी नीड टू यूज़ इन द केस ऑफ मैक्सिमम रेंज। नाउ स्टूडेंट, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो एंगल से दो अलग अलग एंगल से प्रोजेक्शन हम करें बॉडी की और उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो। सो ओवर हियर दिस कुड हैपन, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो दो अलग अलग एंगल की प्रोजेक्शन से हो सकती है। सो विच दिस टू एंगल विल बी, सो एज ऑल ऑफ अस वी आर नोन कि जो हमारे पास रेंज है इट इज़ गिवन बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस थीटा को रिप्लेस कर देते हैं बाई 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा से चेंज कर दिया। सो देन वी विल हैव दिस रेंज लेट इट बी आर डैश, तो दिस विल बिकम देन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को रिप्लेस कर दिया हमने 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा से, सो अपॉन में जी। सो वी गॉट ओवर देयर 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, सो हेयर दिस 2 विल मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, इट इज़ यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। वट दिस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, it is equal to that of theta, sin theta. Okay, so thus we obtain over here it is u square and sin 180 degree minus theta, it is that sin theta. So thus we are having it is sin 2 theta by g. So this is r dash. Okay, so we are looking over here when the angle was theta, so that time range was u square sin 2 theta by g. When we change this one with 90 degree minus theta, so it again became same, तो r dash और r इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट हमारे पास थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो रेंज होती है वो सेम होगी, सेम रेंज, ठीक है। नाउ लेट अस टू अंडरस्टैंड दिस वन ओवर है। जैसे ये हमारे पास वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने सपोज कर ली स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। सो इफ़ आई विल थ्रो द बॉडी, यहाँ पर मैंने क्या किया, 15 डिग्री एंगल से मैंने यहाँ पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया, दिस इज़ एट अ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो इसकी जो रेंज है हमारे पास, ठीक है, तो ये किसके साथ मैच करेगी, सो इट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल लेना है, ठीक है।
तो थीटा जितना ये 15 डिग्री है उतना ही एंगल यहाँ पर लोगे आप, दिस एंगल। ओके, सो फॉर दिस एंगल यू विल गेट दैट द रेंज विल बी सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने एंगल के ऊपर बना, फिर ये प्रोजेक्शन कितने एंगल का बना टोटल, क्योंकि ये 15 डिग्री विद दैट वर्टिकल लगाया हमने, तो इसलिए ये एंगल क्या होगा 75 डिग्री। इसका मतलब हुआ 75 डिग्री और 15 डिग्री के लिए क्या होगी, रेंज इक्वल होगी। यही था ना कि 15 डिग्री पर अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो दैट 90 डिग्री माइनस 15 इट इज़ 75, तो 75 डिग्री और 15 डिग्री के लिए रेंज सेम होगी। या फिर हम इस तरह से बात करें स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास अगर हम इसको 30 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज़ थ्रोन एट 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा एंगल जिसके लिए रेंज क्या होगी, सेम होगी, सो दिस विल बी दैट ऑफ वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल के ऊपर हमारे पास जब इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, जो रेंज है वो सेम होगी। ठीक है, सो दिस एंगल विल बी डन, क्योंकि टोटल एंगल वर्टिकल के साथ कितना बना 90 का, और 30 यहाँ पर यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग क्या है 60 डिग्री। सो दस भी गॉट ओवर है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री जो एंगल हैं उनके लिए रेंज सेम होगा। बट सी दैट this that maximum height is different in that angle, so maximum height it is not same going to be in that cases. Let us to find out maximum height. Okay, so over here maximum height we want to find out कि ये ग्राउंड से ए हाइट, ए पॉइंट तक कितनी हाइट जो है वो अटेन करेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम हाइट को HM और ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन होगा। सो वी शुड टू रिमेंबर जो हाइट है वो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट से ही मिल सकती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनिशियली वर्टिकल एक्सिस में कौन से वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, इट वाज u sin थीटा। ठीक है, तो O से A, तो ये कौन सा मोशन कर रही है, वर्टिकल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो माइनस ऑफ g हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट थिंग इज देयर कि हमारे पास व्हेन इट इज़ रीचिंग एट दिस ए पॉइंट, ठीक है, जब ये ए पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वर्टिकल में, तो ए के ऊपर उसने क्या कर लिया, मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली स्टूडेंट। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है तो उसके बाद वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर फाइनल वो जीरो हो जाएगी, तभी तो वो नीचे की तरफ आएगी। जब तक फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा वो ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसमें जीरो हो गया। सो दस वी हैव टू फाइंड आउट दैट दिस डिस्टेंस, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नाउ इट इज़ हैविंग दैट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इन दिस सिचुएशन। सो यूजिंग नाउ v square is equal to u square plus of 2s, this equation. Okay, so it is in vertical, it is in vertical, it is in vertical, this is in vertical. ठीक है, so final velocity in vertical is 0, this is u square sin square theta minus of double of g, and it is h m maximum height. So that's we obtain over here student, this will come to the left, negative cancel their sign, so it is u square sin square theta by double of g is equal to maximum height. This is that maximum height. Okay, so this is the formula of maximum height. Now at what angle this height will be maximum, so this can be determined. Case number 1, at what angle this height will be maximum, so we are known over there कि इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 1 होना ज़रूरी है। तो कौन से एंगल के ऊपर ये 1 होगा, 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये 1 होगा। ठीक है, सो दस भी ऑब्टेन ओवर हेयर कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है वो u स्क्वेयर बाई 2g। ठीक है, तो इट इज़ ओवर देयर u स्क्वेयर बाई 2g, एंड दैट मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या था हमारे पास, u स्क्वेयर बाई g। So we can say over here कि maximum height at a given angle it is equals to that of r by 2, वो रेंज का हाफ होता है। ठीक है, so that's all from my today's video, thanks for watching it.